ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ L ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਤਾਂ 2L/3 ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸ। ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈਟ ਇਹ h ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3/4h ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੌਲੋ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ h ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2/3h ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸੋਲਿਡ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ 3/8a ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੌਲੋ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ a/2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। a ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ weight ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ weight ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ weight ਵੀ ਇਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਹਦਾ weight ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਬਸ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ weight W1 ਆ, ਇਹਦਾ weight W2 ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ A1 B1 ਆ, ਇਹ A2 B2 ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ x ਬਾਰ y ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। x ਬਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ weight ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬਟਾ ਸਮ ਆਫ weight, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ x ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ y ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਟਾ ਸਮ ਆਫ weight। ਤਾਂ x ਬਾਰ y ਬਾਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, a square is described externally on a side of an equilateral triangle. Find center of gravity of lamina of combined body.
दो बॉडियां ज्वाइन कीतियां हुई ने, उन्हों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आऊगा? ध्यान दो किवें है जी। पहला ये तुहाडी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लवो। पहला मैं इत्थे जिवें इत्थे स्केयर ड्रॉ करता जी, तो स्केयर बाद च बनाने आप। पहला देखो, पहला हैगा अपने कोल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये किहड़ा हुंदा जिहदे सारियां साइडां बराबर ने ते सारे एंगल किन्ने ने 60 डिग्री। मैं ट्रायंगल इदां क्यों बनाया, इदां क्यों नहीं बनाया, आपने वो समझ आ जाऊगा सारा। टेढ़ा बनाया जान के ट्रायंगल, ट्रायंगल दे एक साइड उपर, एक साइड आ साइड लैनी बाहरले पासे एक्सटर्नली बाहरले पासे आपने एक स्केयर ड्रॉ किया। स्केयर की होगा जिहदे चारे साइडां बराबर हो, आ स्केयर ले जाते। ये कंबाइंड बॉडी बन गई। ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे है? ਇਹਦਾ पता ट्रायंगल का पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ, स्केयर का किता नहीं होया, पर आप दिमाग लगा सकते हैं। स्केयर जिहड़ा होगा ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर ते होगा। सिमेट्री देख के लग रहा है आपको सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है सेंटर ते आऊगा। तो जिवें आ देख लो जी, आ भी नहीं किया है आपने सिलेंडर। ये सिलेंडर हुंदा जी, लंबे लोड बनाया है। सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रैविटी नहीं किया है आप, क्यों नहीं लोड नहीं हैगी? क्योंकि सिमेट्री देख के लग रहा है कि ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है, जे हाइट ਇਹਦੀ h आ तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी h/2 ते हो। इस सिमेट्री देख के लग रहा है। ਇਹਦੀ प्रॉब्लम सी कि कोण ਦਾ कित्थे आऊगा, ये तां ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ने। होर देख लो जी, स्फीयर स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रैविटी नहीं कढ़िया आपने, कढ़ना कढ़ सकते लग ही रहा सेंटर से होगा बिल्कुल, क्यों सिमेट्री है सारे पासों। हैमीस्फीयर का कढ़िया क्यों? क्योंकि एक पासों ज्यादा मोटा, एक पासे पतला, पता नहीं कित्थे आऊगा। जिन्ना का डाउट सी आपां उन्हां दे ही सेंटर ऑफ ग्रैविटी आपां कढ़ रहे, जिन्ना पता हैगा सीधा लिख सकते हैं आपां। सो देखो फिर इस केस आपने ये दोनों कंबाइंड बॉडियां करदियां, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो कित्थे आऊगा, ये आपने देखनी। तो फिगर से इदा बना लेनी हैगी आ, इदा टेढ़ी फिगर क्यों बनाई है कि ये तुसीं एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस मान लो। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस इदा मान लिया। इदा इदा क्यों बना लिया, फिर सौखा रहूगा। अपन टेढ़ी फिगर क्यों बनाई है कि दोनों के सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो एक्स एक्सिस पर आएंगे जी। इस सेंटर जो पास कर रही है हुणे तुसीं आ दिमाग लाउणा, इहदे विचों दिमाग किवें, जिहड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल हुंदा, कोई ट्रायंगल हुंदा, ਉਹਦੇ मीडियन उपर सेंट्रोइड आऊगा। मीडियन चाहिए अपन नूं, पर जे यह ट्रायंगल इक्विलेटरल आ तो ये जिहड़ा मीडियन हैगा ये पक्का परपेंडिकुलर भी होगा, वो आप देख लेना। जे यह मीडियन है, ये दोनों साइडां बराबर ने, आ दो ट्रायंगल लवांगे आपां, ए बी डी ए सी डी। जिहड़े ए बी डी है अते ए सी डी है ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। चैक कर सकते हैं किवें, ए साइड एक कॉमन आ, ये दोनों बराबर ने, ए साइड ए बराबर, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों एंगल पक्का 90 होंगे। जे 90 होंगे, देखो लग रहा 90 है, तो ऑल्टीट्यूड अते मीडियन इको गल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच ऑल्टीट्यूड ते मीडियन इको चीज होंदी है, वो आपां देखिया होनी। तो की फायदा हो गया कि ये बिल्कुल सेंटर चो निकल रहा है, तो इहदा सेंट्रोइड भी इत्थे किते होऊगा, इहदा सेंट्रोइड भी इत्थे किते होऊगा, सेंटर ते होऊगा। देख के लग रहा सेंटर च होगा। मतलब हुण चाहिदा की आपां नूं, ये जिहड़ा सेंट्रोइड ने, डायग्राम बना ली, जिहड़े सेंट्रोइड ने उन्हां दे आपां ने वर्टिसिस फाइंड करना है, किहड़े पॉइंट ते सेंट्रोइड एक्ट करेगा। इत्थे आपां ये कंसैप्ट यूज होगा कि ट्रायंगल के केस दे विच जो हाइट आ इहदी एल ले लो, यह 2l/3 डिस्टेंस दूर होगा जो पिछे किया। ਇਹਦਾ सेंट्रोइड के कोआर्डिनेट्स पता करने वास्ते आपां नूं आ डिस्टेंस चाहिए। जे ये l है तो यह 2l/3 होगा। ये कढ़ना जरूरी ने अपने,
ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਏ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਚ, ਇਕੁਅਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਹ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ 60 ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਂ ਹਾਈਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ O A B, ਇਹਨੂੰ C ਮੰਨ ਲਓ, D in triangle OAE triangle ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, OA ਬਟਾ OE is equal to sin 60 perpendicular on hypotenuse। ਤਾਂ OA ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A √3/2 A, ਆਹ ਲੈਂਥ √3/2 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਥ √3/2 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ OC ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2L/3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਗੀ 2/3L। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, √3/2A, ਇਹ ਆ ਗਿਆ √3/2। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, √3/2A y0 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ D ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ A, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ A/2। ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਧ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ OD, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ OD ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, OD ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ OA + AD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, OA + AD। OA ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ, √3/2 A + A/2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ √3 + 1/2 A। ਤਾਂ D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣਾ D ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ √3 + 1/2 × A x, ਤੇ y ਪੱਕਾ 0 ਹੋਊਗਾ, x ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ y 0 ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਉਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। C ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, √3, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ weight ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ weight ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਊਗਾ √3 + 1/2 A, 0। ਇਹਦਾ weight ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ weight ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ weight ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ W1 W2 ਲਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ WW 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ W ਕੀ ਹੈਗਾ, WB ਦਾ weight ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਇਹ W weight ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। There also area triangle OEF ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਕੇਸ A, ਹਾਫ A ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, √3/2 A, √3/4 A²। ਇਹ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ √3/2 ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ √3/4 A, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ, ਆਲਸੋ
एरिया ऑफ स्केयर, ये हुंदा साइड स्केयर। हुण दोने एरिया का की फायदा हो गया, पर यूनिट एरिया आपां ने W मन्निया हैगा, तो इहदा एरिया की होगा एरिया इंटू W। देयरफॉर वेट ऑफ ट्रायंगल ये कितना आ जाएगा, एरिया इंटू W, ते वेट ऑफ स्केयर ये आ जाएगा एरिया इंटू W। जिहड़ा पर यूनिट एरिया हैगा ये पहला करते आ रहे हैं आप, ये कंसैप्ट ला के एरिया कढ़ के आप पहला वेट कढ़ांगे। पहला आपने कोआर्डिनेट्स फाइंड करने जिथे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक्ट करो, दोनों फिगरां का एक्ट करेगा वो कढ़नी है पहला आपने। फिर आपने ਜਿਹੜੀਆਂ फिगर्स ने उन्होंने सारे दे वेट कढ़ लेने। जे दो फिगरां ने, एक ट्रायंगल का वेट कढ़ लिया आप एरिया इंटू W करके, स्केयर टू W करके, सारे क्वेश्चन यही कंसैप्ट होगा, सारे क्वेश्चनों में यही कंसैप्ट लगूगा। हुण इस तो बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला उही वाला जो पिछे करते आ रहे हैं आप। देयरफॉर एक्स बार की आऊगा, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वेट, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वेट, ट्राइंगल ਇਹਦਾ वेट कितना जी, √3/4 a स्क्वायर W पहला आ गया, प्लस दूजा ਇਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वेट, वेट ऑफ स्क्वायर कितना जी a स्क्वायर W बटा नीचे सम ऑफ वेट्स। ਇਹਦਾ पहला की हैगा √3/4 a स्क्वायर W, ए की है ए स्क्वायर W, बस आ चीज होगी। ये एक्स बार आ जाएगा, इन्हें सॉल्व करांगे, फिर वाई बार कटांगे आप। जेड़ा एक्स बार वाई बार होगा वो पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, वही अपन पूछे आ रहे। ये सारे क्वेश्चन जाही कंसैप्ट आ जी। चलो सॉल्व करते हैं आप। देयरफॉर एक्स बार आ गया अपने कोल, देख लो कितना बनेगा, ये तो कट गया, √3 3 हो गया। a³ W का कॉमन निकाल लो जी, इधर कितना आ गया 1/4 प्लस √3 प्लस 1/2, नीचे भी a स्क्वायर W कॉमन निकल जाएगा, यही आ जाएगा √3/4 प्लस 1, जो भी आ गया वो आंसर अपना। ये कट गया जी, ए आ गया 2√3 प्लस 3 बटा 4 बटा √3 प्लस 4/4। ये एलसीएम ले 2√3 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, बाकी चेक कर लियो। ये आ गया 2√3 प्लस 3 बाय √3 प्लस 4, ये एक्स बार आ गया अपने। इस तो बाद वाई बार कटांगे, ये सौखा ही है। वाई बार किमें आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है जी, डायग्राम चेक कर लियो, इंटू वेट एक्स दूजा वाई कोऑर्डिनेट इंटू वेट बटा सम ऑफ वेट्स, ये सारा 0 आ गया। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट कितना a 2√3 3, 0, इतने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। ये अपना आंसर है, बस यही चीज करनी है सारा विच आपने। होर क्वेश्चन देखो, होर क्वेश्चन देखो, जिमें अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड right circular cone have their bases joined together, the bases being of same size. Find the ratio of the height of cone to the height of cylinder so that
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड सॉलिड मे बी एट सेंटर ऑफ द कॉमन बेस। देखो समझ आ गया होगा, एक सिलेंडर है जी सॉलिड, एक राइट सर्कुलर कोन है, जिस तरह मर्जी बना लो, थोड़ी मर्जी है। सिलेंडर बना लिया जी, दोनों बेस सेम, दोनों का बेस जो है वो सेम। ये आ गया, दूजा है कोन, आ कोन, दोनों बेस कॉमन। हुण ये कोन की हाइट नहीं पता कितनी हैगी, पर दोनों का रेडियस जो है बेस का ये सेम होगा जी। ये आर मान लिया, यदी हाइट आपां H1 मान ली, यदी हाइट नहीं पता कितनी होगी, ये अपने H2 मान ली। इन्हां दी हाइट दी ही आपां रेशो फाइंड करनी है। और दिता की होया आपां नूं, ये दिता है कि जो एक कंबाइंड बॉडी बन गई, इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे आऊगा, जो कॉमन बेस है, जो पार्ट दोनों च कॉमन है, ਉਹਦੇ सेंटर के उपर सेंटर ऑफ ग्रैविटी आऊगा एक्स बार वाई बार गिवन। आप हाइट की रेशो फाइंड करनी है, जो काम सौखा ही है। हुण ये एक एक्स एक्सिस मनो, एक वाई एक्सिस मनो, थोड़ी मर्जी है, चाहे इनू मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनू एक्स एक्सिस ले लो इदा, जां इत्थे मान लो। हुण पहला जो पिछला क्वेश्चन किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ओरिजिन, मैं ਇੱਥੇ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ क्वेश्चन। बाकी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜੀ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ, ਇਹ H2/2 डिस्टेंस ਤੇ ਹੋਊਗਾ। आ डिस्टेंस अद्ध ते आऊगा, H/H2 हाइट आ, ये अद्ध दे सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगी, इनू O ले लिया, ये A ले लिया। चलो हुण इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है राइट सर्कुलर कोन आ, सॉलिड है ये, इत्थों पता कि जिहड़ा आ डिस्टेंस आ, इत्थों इत्थे डिस्टेंस ये कितना आ सेंटर ऑफ ग्रैविटी मान लो, आ डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा ये 3/4 H1 होगा, ये पढ़ा है। पर जे ओरिजिन तो देखना तो अपन आ डिस्टेंस चाहिए कि आ डिस्टेंस कितना, तां जो आपां इहदे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकीए। ओवरऑल डिस्टेंस H1, ये 3/4 H1 आ, तो कितना रह गया अपने कोल H1/4 रह गया। आ B डिस्टेंस आ, ये आ गया H1/4 0, आ डिस्टेंस आ गया। हुण यह ओरिजिन तो लैफ्ट वाले पासे आ, सारी गल्लां ध्यान रखनियां, तो यह कोऑर्डिनेट एक्स नैगेटिव होगा, एक्स जो है वो नैगेटिव आएगा, ये गल्लां सारे ध्यान रखनियां। चलो कोऑर्डिनेट्स निकल गए, हुण की रह गया बस ये पर देखना कि ਇਹਦਾ वेट कितना होगा, ਇਹਦਾ वेट कितना होगा, ये कढ़ने आपां दोनों दे वेट। ये च वॉल्यूम की गल हो रही है, हुण 3D फिगर कोण एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम लवांगे आपां, लैट कर लिया, लैट WB का वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सिलेंडर करांगे पहला, इसनों आना चाहिए जी, आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, ये होंगे जी πr² H, R रेडियस हो गया, H2 की हाइट हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये होंगे 1/3 πr², हाइट ये हाइट कितनी है H1, 1/3 πr² H होंगे हाइट की H1। वॉल्यूम निकल गए, वेट मान लिया अपन, देयरफॉर वेट ऑफ सिलेंडर ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू W, ते वेट ऑफ कोन ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटू W। ये वेट निकल के दोनों वेट आ गए जी, आल्सो लिख दें आप, ए जो है वो H2/2 0 आया, ਅਤੇ B जो है वो -H1/4 0। और दिता की होया अपन सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे एक्ट करती है, एक्ट्स एट
ओरिजिन ते एक्ट कर रही है 0 0 मतलब एक्स बार कितना इत्थे 0 अते वाई बार कितना है 0। फिर दोनों गिवन ने अपन H1/H2 की रेशो फाइंड करनी है। चलो एक्स बार कढ़ी आप किवें आऊगा नंबरिंग 1 पा लो आलसो एक्स बार एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वेट ऑफ कौन कितना जी 1/3 पाई आर स्क्वायर H1W। अगे वेट ऑफ पहला एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इनटू वेट ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H2W बटा टोटल वेट कितना आ गया पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H1W कौन का आ गया प्लस सिलेंडर का आ गया। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी अपन कि वाई बार तो जे वाई बार जिवें पिछे कढ़िया सीगा दोने 0 ने 0 ही आऊगा तो एक्स बार विच ही अपना आंसर आऊगा। लभना की आपां H1/H2 ये रेशो फाइंड करनी कितनी आऊगी। तो देखो ये वैल्यू पता अपना 0 ये आ गया 0 इक्वल्स टू माइनस कॉमन काट लो जो कुछ कॉमन निकल जाए चो एक तो पाई आर स्क्वायर W कॉमन निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर W ये कॉमन निकल गया जी। इथों आ गया माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस H2 स्क्वायर बाई 2 नीचे जो भी है इन्हें इदां ही पा लवो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ये सारा खत्म हो जाएगा। ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा जी। ये भी चक के ये भी खत्म हो जाएगा तो की बच गया माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 12 H2 स्क्वायर अपॉन 2 बस आ चीज़ है जिहदे इत्थों आ जाएगा एक पास ले जाओ H1 स्क्वायर अपॉन 12 H2 स्क्वायर अपॉन 2 हाँ H1 स्क्वायर आ गया 6 H2 स्क्वायर तो H1 आ गया √6 H2 तो दिस इंप्लाई जो हाइट की रेशो हैगी ये √6/√1 आ जाएगी। जो कंसैप्ट तो सारा हुई है बाकी जो पूछे वो पढ़ लवांगे आप। ये क्वेश्चन सीगा जी एक लास्ट क्वेश्चन आप होर देखना जी वो देख लो। ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं A solid hemisphere and a solid right circular cone have their bases joined together and bases being of same size. Find the semi-vertical angle of the cone so that center of the combined body may be at center of common base, the two solids being of same material. तो देखो पहला वांगू ही सारा एक हेमिस्फीयर आ एक कोन आ जी ले लो जिवें एक कोन ले लिया पहला वांगू ये हेमिस्फीयर ले लिया दोनों बेस सेम आ जी आ कोन ले लिया दिता है अपन सेंटर च मान लेना मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस रेडियस ਇਹਦਾ ए ले लिया ये O हो गया ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो A ते आ रहा ਇਹਦਾ B ते आ रहा। कोन का सैमी वर्टिकल एंगल कटने वास्ते क्या उन्होंने ये अल्फा मान लिया अपने सैमी वर्टिकल एंगल अल्फा सपोज कर लिया
तो देखो चाहे तो हुण देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट चाहिए, ये हाइट पता होगी तो ही आप दसना कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितने आऊगी। 2/3 3/4 H होंगे, हाइट का 3/4 होंगे, आ डिस्टेंस से सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक्ट करेगा। हुण हाइट कड्ढण वास्ते C पॉइंट ले लिया अपन और D का इन ट्रायंगल OCD ट्रायंगल लिया, OC कढ़ना अपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए कॉट हो गया, ए कॉट अल्फा हो गया, तो ये हाइट जिहड़ी है ये सारी हाइट अपने को ए कॉट अल्फा आ गया। क्यों अल्फा क्यों लिया पाने, बिकॉज अल्फा कटना अपन, बाकी काम सारा पुराना जी। ए कोऑर्डिनेट्स कटांगे वेट ना मल्टीप्लाई करांगे, ए कोऑर्डिनेट्स करांगे वेट ना मल्टीप्लाई करांगे, सेंटर ऑफ ग्रैविटी पता अपन, बाकी सारा कंसैप्ट पहला काम ही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्फा निकल जाएगा, अल्फा ही अपनों कटने वास्ते क्या जो कटते हैं। ये हाइट ये आ 3/4 H हो गया, पहला होगा 1/4 H होगा, तो बी के कोऑर्डिनेट्स की आउणगे इत्थे पाना, चलो देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स आउणगे जी पिछे किया सी ये H/4 डिस्टेंस होएगा, मतलब H/4 डिस्टेंस होएगा। इधरले पासे एक्स नैगेटिव होंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स ए आ गए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स की होंगे। सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो सॉलिड हैमीस्फीयर है वह 3/8 ए डिस्टेंस होंगे, मतलब ए पॉइंट की आऊगा, ए पॉइंट 3/8 ए, मतलब ए आऊगा अपने को। हुण ये चीज़ां पता होणगियां तां ही सॉल्व होणगे क्वेश्चन। ये आ गया, उवें वेट कट रहे, मैं शॉर्टकट मार रहा जी। पहला ਇਹਦਾ वेट की आऊगा, प्रॉपर लिख लियो, वेट ऑफ कोन ये हुंदा 1/3 पाई आर, आर कितना लिया आप रेडियस ए लिया, चाहे आर जो मर्जी मान लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना हो रहा ए कॉट अल्फा इंटू डब्ल्यू ना मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लियो प्रॉपर। डब्ल्यू की मन्ने आप डब्ल्यू भी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो पिछे किया सी ये आ गया। तो एंड वेट ऑफ हैमीस्फीयर, हुण हैमीस्फीयर का वॉल्यूम की होंदा, ये होंदा जी 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर होंदा। स्फीयर का 4/3 होंदा, हैमीस्फीयर 2/3 का, वॉल्यूम आ गया इनटू वेट, ये की बन गया वेट ऑफ हैमीस्फीयर। सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितने एक्ट करता, सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक्ट्स एट 0 0, देयरफॉर एक्स बार कितना हो गया 0, वाई बार कितना हो गया 0, एक्स बार 0 आ गया, वाई बार 0 आ गया। देयरफॉर एक्स बार ये कढ़ लेने आप भी, एक्स कोऑर्डिनेट वेट ना मल्टीप्लाई करांगे, सारा उवें करांगे। वाई बार की पहला वांगू लोड़ नहीं पैनी हैगी, जितों अल्फा निकल जाएगा वो करते हैं आप। एक्स बार ये किवें निकलूगा, पहला एक्स कोऑर्डिनेट इंटू ये कोन दा वेट ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डब्ल्यू प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, पहला हम कर रहे हैं जी, पहला कितों भी कर रहे हैं जी, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वेट ऑफ हैमीस्फीयर 2/3 पाई ए क्यू डब्ल्यू बटा ओवरऑल वेट जेड़ा ओवरऑल वेट है, पहला वेट ऑफ कौन आ गया प्लस वेट ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। ये 0 अपने को 0 इक्वल्स टू, बाकी सॉल्व कर लो जी, ये कॉमन की निकलदा ए क्यूब पाई ए क्यूब डब्ल्यू कॉमन निकल गया, ये कट दो, ए कॉमन कटिया आपने
ਇਹ ਆ ਗਿਆ -a cot alpha, a ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ, ਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -cot square alpha upon 12। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ 1/4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟਾ 1/3 pi a cube cot alpha w 2/3 pi a cube w। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ -cot square alpha upon 12 plus 1/4 equal to 0। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ cot square alpha upon 12 is equals to 1/4। ਤਾਂ cot alpha ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √3, ਇਹ alpha 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਊ, cot 30 ਤੇ √3/2 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਮੀ वर्टिकल एंगल जो है ये √3 मतलब 30 ਆਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ। ਚਲੋ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਮੇਨ, ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।